गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ ट्रिक्स रूल्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ABC टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और टाइम कम होता है, शॉर्टकट हम आंसर कैसे निकालें उसके लिए कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल रूल्स हमने तैयार किए हैं। उनको आज आपके सबके सामने हम डिस्कस करेंगे, जिससे आज बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप इस चैनल को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आइए आज हमारे साथ डिस्कस करते हैं रूल्स और ट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। So how we can get good marks in organic chemistry, especially there are 5 points. First is comparison or differentiate questions we should discuss. Second, reasoning especially hydrogen bonding, boiling point, melting point, and based on steric hindrance. And third, numericals especially chemical kinetics, electrochemistry, and density of solid states, and chemical kinetics, surface chemistry. We can get so many numericals. Laws, so there are so many laws and principles or laws are applicable in physical chemistry, and 5-year questions of NEET and IITs and various state board and central board. We go through all of above, we can get good marks. So first of all, in these parameters we should discuss tricks or rules for organic reactions. There are more than 25 rules. With the help of these rules, we can get answer of the ABC type questions or conversion type questions for benzene to benzoic acid or ABC type questions. We can get easily their answer in a few seconds with the help of these rules. Rules for organic reactions. First of all, reagent potassium hydroxide KOH. This is a solid nature. Whenever it dissolves in water is called aqueous KOH, and dissolved in alcohol is called alcoholic KOH. Stability of alcohols and stability of acids: Cl2 sunlights, PCl5, PCl3 and SOCl2. Potassium cyanides. There are 3 applications of potassium cyanides: Mendes reaction, complete hydrolysis, incomplete reduction and hydrolysis. H2SO4 dissolved in water is called dilute H2SO4, and H2SO4 dissolved in pure H2SO4 is called concentrate H2SO4. So first of all, we will discuss here first law, rules for KOH. KOH may be of 2 types. First is alkali and aqueous KOH. Now we will discuss what is the function of aqueous KOH. Aqueous KOH in whenever unsaturated hydrocarbons such as alkene CH2 double bond CH2 or alkynes CH triple bond CH apply aqueous KOH, just simple water H positive OH negative. As per the Markovnikov rule, and CH2 H and OH, and addition of water from alkene to alcohol. We can prepare alkene to alcohol. We can convert alkene to alcohol with the help of aqueous KOH. Directly add water molecule. It's vice versa. Again, we get in place of aqueous KOH this reaction alkali KOH. Alkali KOH, this is a reactant and this one is product. This one is a reactant and this one is product. Immediately water molecule released. Water molecule released and alkene is formed. It is clear? So both are opposite each other. From the aqueous KOH, alkene को alcohol में बदलता है और alcoholic KOH alcohol को alkene में बदल देता है। तो इसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अब हम सेकंड लॉ यूज करते हैं, उसमें है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल। यदि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह हैं, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ज़्यादा एल्कोहल तो क्या करती है, अनस्टेबल करती है। तो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल बिकॉज at one carbon there is 2 hydroxy group or more than 2 hydroxy, they will be unstable. So immediately water molecule released and at room temperature CH3CHO aldehyde is formed. Similarly, third law, stability of acid. Third law,
stability of acid, it is very clear. Whenever more than one acidic group present at one carbon, that will be unstable. That will be unstable. Immediately at room temperature, carbon dioxide is released, CO2 is released, or CH3, CH2, COOH. One carboxylic acid group present in this compound. तो alcohol की stability more than one OH group unstable, more than COOH group unstable at one carbon. In alcohol, water molecule is released. In from acid, CO2 gas is released. Third law. Fourth we will discuss about PCl5, PCl3 and SOCl2. नो ऑक्सी नो रिएक्शन. नो ऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी. नो ऑक्सी नो रिएक्शन. ये जहाँ भी है ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है, PCl5, PCl3, Cl, ये HCl यहाँ बाहर निकल जाता है, POCl3 बाहर निकल जाता है और Cl आता है, क्या आता है, RCl. सिमिलरली आप PCl3 यूज करेंगे तो PCl3 यूज करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ते हैं और इसमें Cl, Cl, Cl और क्या बनता है, इसका बनता है बाई प्रोडक्ट H3PO3 और यहाँ क्या बनेंगे 3RCl. यदि इसकी जगह आप SOCl2 लेते हैं यानी कि ROH और आप लेते हैं S डबल बॉन्ड O SOCl, तो इसमें SO2 गैस बाहर बनेगी. कौन सी बनेगी, SO2 गैस बाहर निकलेगी, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ केवल Cl आएगा. तो क्या आएगा, यहाँ केवल RCl. तो हम देख सकते हैं कि चाहे PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो, कोई भी हम लें और इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसके पास ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीजन वहाँ से खा जाता है और क्या आता है उसकी जगह यहाँ Cl आता है. क्या जाता है, Cl. तो डायरेक्ट हम सवाल का जवाब दे सकते हैं, जब भी ये रिएजेंट हमारे मौजूद हो रिएक्शन के एरो के ऊपर तो इमीडिएटली वहाँ से ऑक्सीजन हटा दो और क्या लगा दो, Cl. तो नो ऑक्सी नो रिएक्शन. नेक्स्ट जो हम रूल की चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है, हम एक चर्चा करते हैं सोडा लाइम. नेक्स्ट 5th नंबर पर हम बात करते हैं सोडा लाइम. नाम सोडा लाइम है. सोडा मीन्स NaOH, लाइम प्लस CO, NaOH प्लस CO, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम. और ये एसिड ग्रुप पर नो एसिड नो रिएक्शन. यदि एसिड नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा. ये एसिड पर अटैक करता है और जिस प्रकार से ये क्या करता है, एसिड ग्रुप की हत्या कर देता है. RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ग्रुप है. इस पर NaOH आता है तो सबसे पहले इसका OH और इसका H माइनस H2O और क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड ONA. ये सॉल्ट बनता है. इस सॉल्ट की रिएक्शन फिर हम किससे कराएं, वापस NaOH से. तो क्या बनेगा, Na2CO3, ये माइनस Na2CO3 बनेगा, गैस निकलेगी और ये H और ये R और क्या बनेगा, RH यानी एल्केन बनेगी. क्या बनेगी, एल्केन बनेगी. तो सोडा लाइम आवे एसिड भाग जावे. सोडा लाइम आवे एसिड भाग जावे. ये क्या करता है, एसिड ग्रुप की हत्या करता है. सेम जिस प्रकार से जसवंत सिंह या केयर सिंह, इसको आप इंदिरा गांधी मानो, एसिड ग्रुप को इमीडिएटली क्या करता है, शॉर्ट आउट करता है और उसको रिलीवेंट कार्बन वाले एल्केन में कन्वर्ट कर देता है. तो सोडा लाइम आवे एसिड भाग जावे. नेक्स्ट हम जो रूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल्स में हमारा जो ट्रिकी रूल्स है उसमें हम पढ़ते हैं H2SO4 रूल्स ऑफ H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में यदि हम पानी डाल दें तो क्या बनता है, डाइल्यूट H2SO4 और इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. इसकी जगह यदि कोई Hg2 पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही क्या है, पानी है. और एक होता है कंसनट्रेट H2SO4 जो प्योर होता है. दोनों का काम क्या है, ये कोई एल्कीन है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
और इस एल्कीन पर हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब वाटर ऐड करना। तो रूल्स ऑफ H2SO4, तो H2SO4 एक तो पानी मिला दे डाइल्यूट H2SO4 बन जाता है, एक प्योर फॉर्म को कंसंट्रेट H2SO4 कहते हैं। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ हम जब देखें हैं कि डाइल्यूट H2O4 की रिएक्शन कराएं, व्हेन एवर अनसैचुरेटेड asymmetrical hydrocarbon react with in presence of dilute H2SO4 what will be happen। तो उसका आंसर यहाँ आएगा कि dilute H2SO4 क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देगा। अब ये सिमेट्रिकल है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये एरो इस साइड में नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसमें क्या आएगा, H कैटायन गोज टूवर्ड्स एनायन और एनायन गोज टूवर्ड्स कैटायन। तो प्लस माइनस के पास जाता है और माइनस कहाँ जाता है, प्लस के पास जाता है। तो यहाँ क्या था, चार नेगेटिव, तो नेगेटिव पर क्या आ गया H, यहाँ क्या आ गया OH, यानी कि क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का ऐड हुआ, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या काम करता है, डाइल्यूट। अब इसके रिवर्स, इसका अपोजिट क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4। मान लो ये एल्कोहल है CHOH और यहाँ क्या है CH3। अब आप यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, तो कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, माइनस H2O, वापस क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। ये काम H3PO4 भी कर सकता है, ये काम Al2O3 एट 300 डिग्री टेम्परेचर पर भी हो सकता है। एल्यूमिना 300 डिग्री और फॉस्फोरिक एसिड पर की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो इसी के साथ और भी हम नेक्स्ट रूल्स पर हम चर्चा करेंगे। और आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो आपको अधिकतम नॉलेजेबल और यूजफुल कंटेंट्स, आपको शॉर्टकट ABC क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे। अब बहुत सारे ABC सवाल आएंगे हमारे सारे रूल्स पढ़ने के बाद। आप कैसा भी सवाल हो, कैसा भी कन्वर्जन हो, आप इजीली उनके आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके साथ फिर पेश होंगे आपके साथ, और आप देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड 2 ट्रिक्स और रूल्स फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन। थैंक यू सो मच।